Welcome students. This lecture is based on phylum Annelida. We already discussed about phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes means flatworms and roundworms. But these are a little bit different, called ringworms, also called segmented worms. Ringworms as well as segmented worms. So this particular phylum Annelida are characterized by annuli on their body, and those annuli are nothing but rings on their body. Their outer body segments are perfectly coincide with inner body segments. Those are called annuli, and animals are called segmented worms, and these segments are also called metameres, and these worms are called metameric worms. They bear perfect segments on their body. That's how they are segmented animals, segmented worms, okay, or ringworm. They are found mostly in water. Most of the members are aquatic, but some are free living as well, burrowing like earthworm, and some are ectoparasitic like leech. Okay, so here there is a great diversity in these animals having different types of habitat. They may be aquatic, they may be free living, burrowing in moist soil like earthworm, or some are ectoparasitic sangivorous animals like leech. Okay, so these members are very important: earthworm, leech, as well as Nereis. You should remember. So these animals are bilaterally symmetrical. They are bilateral. Okay, they show perfect triploblastic nature. They are triploblastic. They are true coelomic worms. They are pure coelomic worms. Earlier we have seen that roundworms, they are pseudocoelomic. Initially flatworms were discussed, which were non or acoelomic members, no coelom at all in those flatworms. But here there is a perfect coelom called eucoelom. So these animals are called eucoelomic or coelomic, right? They show tube within a tube body plan. Tube within a tube body plan, as there is complete digestive tract with one end characterized by mouth and other end by anus. As they show complete digestive tract, they show tube within a tube body plan. Got it? Now about their special characteristic features. They show a special structure called clitellum having a role in reproduction. Okay, clitellum is present in those worms. Best example here will be earthworm. Earthworm shows a characteristic clitellum region in the body, and that is going to help in the process of reproduction, of course. So here we had to understand some other important characteristic features. So up till now, let's revive. These animals are called ringworm due to presence of annuli on their body. They may be free living, they may be ectoparasitic, we can say, or most of the members are aquatic, right? Some members are burrowing, as they are found in burrows in moist soil like earthworm. Okay, some are sangivorous, blood-sucking animals like leech as well. So let's think about their body systems. So first of all, about locomotion. So how do they locomote? So locomotion occurs different by, we can say, different structures. Example, setae. Setae are found in earthworm. Similarly, we can say parapodia are commonly found in members like Nereis. And another important features, we can say longitudinal, we can say muscles, longitudinal plus circular. Both muscles are here in these members, but they can also locomote by their suckers as well, like in leech. Okay, and sometimes their body muscles, both longitudinal and circular, these both types of muscles are going to help in locomotion. Okay,
locomotion occurs by different types of structures in different members. Example, अर्थवॉर्म में सेटी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नेरिस में पैरापोडिया होते हैं और लीच में होते हैं सकर्स, जिसके हेल्प से उनका होता है लोकोमोशन। बहुत ही सिंप्लीफाइड है लोकोमोशन, राइट। अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आप देख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल ये कंप्लीटली डेवलप है, पूरी तरह है, माउथ से एनस तक सारे सिस्टम्स में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए ये कंप्लीट होता है। और इनका जो फूड है वो डेड डिकेइंग डेट्रिटस मैटर हो सकता है, चाहे वो प्लांट रिलेटेड हो या फिर एनिमल रिलेटेड। कुछ संगिवर्स है तो उनका फूड ब्लड होता है जिस पे ये फीड करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड ऑफ कोर्स, राइट। देन अबाउट रेस्पिरेशन इन दिस वर्म्स, तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है ये इनके बॉडी सरफेस से, बॉडी वॉल से हो जाता है, ठीक है। बॉडी वॉल इसके लिए परमिएबल होता है फॉर गैसेस डिफ्यूजन एंड गैसेस एक्सचेंज ऑकर राइट बाय देयर बॉडी वॉल, राइट। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका बॉडी वॉल। सर्कुलेशन इनमें टिपिकली आपको डिफरेंट मिलेगा और वो सर्कुलेशन कहलाता है क्लोज सर्कुलेशन। देखिए जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें कभी भी आपको क्लोज सर्कुलेशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस फाइलम, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स फॉर्म हो चुके हैं बॉडी के अंदर इन वर्म्स के, दो इट इज़ ऑफ सिंपल टाइप बट इट इज़ क्लोज, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी नॉन कॉर्डेड मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि टिपिकली एनीलिडा में आपको क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा, ऑन दी अदर हैंड बाकी मेंबर्स में आपको मोस्टली ओपन सर्कुलेशन ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेशन रहना इनका टिपिकल फीचर है। तो आपने देखा इनका सर्कुलेशन क्लोज होता है, रेस्पिरेशन बॉडी से होता है सरफेस से, ठीक है, और लोकोमोशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मेंबर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सेटी, पैरापोडिया या फिर वो सकर्स भी यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन, हाउ एक्सक्रीशन ऑकर्स इन दिस वर्म। एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय नेफ्रिडिया इन दीज एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नेफ्रिडिया है। इससे पहले वर्म्स में हमने देखा प्रोटोनेफ्रिडिया था, उससे पहले फ्लैट वर्म्स में हमने देखा फ्लेम सेल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेफ्रिडिया को याद रखना है एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, राइट। नर्वस सिस्टम, इसको समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम इन दिस वर्म्स कैसे होगा, किस टाइप का होगा नर्वस सिस्टम। तो इसमें नर्वस सिस्टम में आप देखिए इनके पास होता है नर्व रिंग एंड इनके पास होता है नर्व कॉर्ड, ठीक है, नॉट नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड में फ़र्क होता है, ठीक है ना। हम जब फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे उस वक्त हम डिटेल में समझेंगे अबाउट नोटोकॉर्ड, ठीक है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है आज वही नोटोकॉर्ड है, बट यहाँ पे तो नर्व कॉर्ड है जो आप देख सकते हो, इसका पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेंट्रल, ठीक है, ये वेंट्रल होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैंग्लियोनेटेड होता है, गैंग्लियोनेटेड, ठीक है ना। जबकि हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो होता है डॉर्सल, वो होता है हॉलो और वो नॉन गैंग्लियोनेटेड होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ डिफरेंस आप याद रख सकते हो, राइट, इन दिस वर्म्स। इन वर्म्स में अगर आप देखो तो आपको एक और एक स्पेशलिटी मिलेगा कि इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में आप याद रखिए। रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द वर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। ये वर्म्स मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट नेरिस। नेरिस जो होते हैं वो डायोशियस होता है, मतलब सेक्सेस उसमें सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख सकते हो, एक्सेप्ट नेरिस। तो नेरिस ऐसा मेंबर है जो यूनिसेक्सुअल है या फिर डायोशियस है। इसका मतलब इसमें मेल और फीमेल ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में सेक्सेस जो आप देख सकते हो युनाइटेड होते हैं। एकाच ॲनिमलमध्ये दोन्ही सिस्टीम जेव्हा प्रेझेंट असतील आपण तेव्हा त्यांना हर्मॅफ्रोडाईट किंवा बायसेक्शुअल म्हणायचं, ठीक आहे। पण येथे हे युनिसेक्शुअल असतात, यांच्या बॉडीमध्ये एकच रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहायला मिळणार इन नेरिस। अदर वर्म्स ऑफ कोर्स दे आर बाइसेक्सुअल। तो देखिए एक्सक्रीशन किस चीज़ से हुआ, नेफ्रिडिया।
नर्वस सिस्टम कैसा है? विथ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड कैसा है? दैट्स टिपिकल हियर. वेंट्रल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड. ओके, हमसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट. रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल होता है. हर्मैफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं वॉर्म्स. और इसमें आप देख सकते हो एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज़ नेरिस, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं वॉर्म्स. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है. नाउ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स you should know about this phylum Annelida, about the members. ये जो hermaphroditism होता है, बाइसेक्सुअलिटी, क्या ये बेनिफिशियल या हार्मफुल है? ओके, इसका भी यहाँ दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं. hermaphroditism means bisexuality. So here there is the energy conservation we can say. यहाँ पे जो वर्म्स है, दोनों सिस्टम एक ही वर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए उनका जो एनर्जी है टू सर्च फीमेल मैटिंग पार्टनर. ओके, और उसमें जो इंश्योरेंस है आप देख सकते हो, दोनों सिस्टम एक ही जगह है, एट अ टाइम मैच्योर्ड होते हैं, तो उससे फर्टिलाइजेशन ये इंश्योर्ड होता है. तो ये इसका एक बेनिफिट आप कह सकते हो कि है. और इन सब सिस्टम को पजेस करने में बहुत सारा एनर्जी इनको मेंटेन रखने में भी कंज्यूम होता है. ठीक है, कंजर्वेशन मतलब वहाँ थोड़ी बचत होती है, ये कंजम्पशन है मतलब यहाँ एनर्जी खर्च भी करनी पड़ती है. ओके, तो ये आप समझ सकते हो. और वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है बाइसेक्सुअलिटी या फिर हर्मैफ्रोडाइटिज्म, जबकि हर एनिमल का टारगेट है टू ब्रिंग सम वैरायटी, टू ब्रिंग सम वेरिएशन फॉर द सेक ऑफ एवोल्यूशन. इवॉल्व होना ये सबका अल्टीमेट एम होता है. ठीक, तो अगर ये एक ही एनिमल के एग और स्पर्म यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाते हैं. दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से इट इज़ अ डीमेरिट ऑफ वी कैन से बाइसेक्सुअलिटी और हर्मैफ्रोडाइटिज्म. राइट, तो आपने देखा ये सिग्निफिकेंट भी है, इनसिग्निफिकेंट भी है. राइट, दोनों व्यूज़ यहाँ पे हैं. फिर यहाँ पे आपको लीच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है. लीच, ठीक है, जिसको आप कहते हो हाइरोडिनेरिया. तो ये जो लीच है, इनके सलाइवा में होता है खास टाइप का पिगमेंट जिसको आप कहते हो हाइरोडीन. तो ये हाइरोडीन जो होता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसलिए इसको आयुर्वेदा सिस्टम में इवन इन सर्जरीज में यूज़ किया जाता है एज अ क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. तो ये ब्लड क्लॉट को रोकता है. राइट, तो जिनको थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है उनमें भी हाइरोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. मतलब जिनका ब्लड सर्कुलेशन में ही क्लॉट होने लगता है तो उनके लिए हाइरोडीन ये एंटी क्लॉटिंग, जैसे कि हेपेरिन हम सब में होता है, उस टाइप का एक बेस्ट केमिकल है हाइरोडीन. ओके, इसको सर्जरीज में यूज़ करेंगे. और फिर लीच ये आयुर्वेदा सिस्टम में जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उस ब्लड को सक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है लीच. या फिर ऐसे पैरासाइट, इक्टोपैरासाइट्स जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम वुंडेड साइट, इन्फेक्टेड साइट्स पूरा सक कर लेते हैं बाय देयर सकर, एंड दैट्स हाउ दे आर सिग्निफिकेंटली यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम. ओके, पैरालिसिस के केस में भी इनको यूज़ किया जाता है. पैरालिसिस जो ब्लड वेसल रिलेटेड पैरालिसिस है, तो पूरी तरह जब ब्लड सक करते हैं तो जो क्लॉट्स वगैरह है ब्लड वेसल्स में कि पूरी तरह रिमूव हो जाते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ दे आर सिग्निफिकेंट इन मेडिकल फील्ड. सो दे आर सिंपली फ्रेंड ऑफ डॉक्टर्स. राइट, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड ऑफ फार्मर्स आर फेरेडिमा, जिसको आप कहते हो अर्थवर्म. तो फेरेडिमा जो है वो है अर्थवर्म. और अर्थवर्म के बारे में आपने याद रखना है, इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये बरोविंग है. सो दे इंक्रीजेस पोरोसिटी ऑफ द सॉइल. राइट, सॉइल पार्टिकल्स को थोड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कि मूव करते हैं. राइट, जिससे कि एयर कंटेंट सॉइल का बढ़ता है, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड. नंबर 1. नंबर 2, root system can easily penetrate the soil due to porosity made by earthworm. Number 3 and very important, their casting called vermi casting. तो ये earthworm जो कुछ खाते हैं और उसके बाद जो fecal matter release करते हैं, so that is a great fertilizer called vermi compost, and that's how significantly they can help the farmers, and that's how called friend of farmers. तो इस तरह ये जो फाइलम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर्स है लाइक अर्थवर्म, जिससे हमें कोई हार्म नहीं है. ठीक है, और लीच जिसका हमें बेनिफिट ही है, आप देख सकते हो. और नेरिस जैसे मेंबर भी इसमें होते हैं. कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि इसमें पूरी तरह परफेक्ट सिलोम देखने को मिला, सिगमेंटेशन, मेटामेरिज्म देखने को मिला. राइट, और बायसेक्सुअलिटी भी इन वर्म्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती है. राइट, तो आप देख सकते हो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो इनके बॉडी पे हैं उनको एन्यूलाई आपने कहना है. ठीक है,
तो इस फाइलम को अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक्स, ओके, और इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी, सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एनालिटिक्स ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो होप यू गेट बेनिफिट फ्रॉम द लेक्चर। थैंक यू।